Going on. My preparation going on. Good, sir. My preparation is going on. Good. Yes. Yeah. Hmm. Visibility is low. My preparation is going on. Excellent. आपकी तैयारी कैसी चल रही? मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. Who's ready? I'm ready. How many songs? यहाँ जा. Have you written the first one? Yes, Should I erase? yes. दो क्वेश्चन भैया से पूछे से. Have you written the first one? Yes, I have written the first one. Should I erase? Yes, sir, you should erase. Sir? Sorry, man. हाँ. It will. Have you written the first one? Yes, I have written the first one. Should I erase? Yes, you should erase. Yeah. Have you written the first one? Yes, I have written the first one. Sorry. Yes, I have written the first one. Should I erase? Yes, you should erase. Didi, I have written the first one. No, you You can can write let the them first talk. one. How's the sorry? I have written first one. Again? I have written first one. Sorry. धीरे धीरे चलो रुक जाओ. तुम दूसरे का पूछिए भैया से. Have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I erase? Yes, you should erase. Have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I erase? Yes, you should erase. Yeah. Have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I erase? Yes, you should erase. Have you written the first one? Yes, I have written the first one. Should I erase? Yes, you should erase. Have you written the first one? Yes, I have written the first one. Should I erase? Yes, you should erase. Have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I erase? Yes, you should erase. Have you written the noun? Yes, I have written the noun. Should I erase? Yes, you should erase. Have you written the noun? Yes, I have written the noun. Should I erase? Yes, you should erase. Have you written the noun? Yes, I have written the noun. Should I erase? Yes, you should erase. Have you written the noun? Yes, I have written the noun. Should I erase? Yes, you should erase. Have you written the noun? No, I have not written the noun. Write down. Good. Okay, right now. Have you written the noun? Yes, I have written the noun. Should I erase? Yes, you should erase. निकिता did I give you any interactive sentence? Yes, sir, you gave us one interactive sentence yesterday. क्या कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया? हाँ सर, कल आपने हमें एक interactive sentence दिया था. Did I give us any interactive sentence? No, you did not give us any interactive sentence. Sorry.
तुम पूछ लो उससे। Did sir give, नहीं मत करो सर, सिंपल करो। did I give the interactive sentence? तुम पूछ लो। Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, you can give us one interactive sentence yesterday. Sorry. Did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, you give. Give. यू आर रेस्ट ना, दे दो आंसर, वो रिपीट नहीं करना। Yes, did you give चलो तुम आंसर दे दो, क्वेश्चन तो तुम नहीं कर पाए। Yes, you gave us one interactive sentence yesterday. कंप्लीट करो। क्या कल मैंने तुम्हें कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, कल आपने हमें एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। हाँ पूछ। Did I? नहीं नहीं, अगला अपन, अब हम अगला जानना चाह रहे हैं। सभी सभी से पूछ लेते हैं, विच इंटरेक्टिव सेंटेंस डिड आई गिव यू यस्टरडे? You gave us. You gave us. कम अगेन। You gave us. My leg is asleep. ये डे बिफोर यस। Yes. तो अब आगे इसको आगे नहीं चला रहे राउंड को। मेक अ रूम मिला है बच्चे? Yes. Yes. इट सक्स। Yes. Yes. गेट गोइंग। No. गेट गोइंग नाउ। बच्चों, which chapter is this sentence related? This sentence is related to present continuous. Which chapter is this sentence related? This sentence is related to order or You are absolutely right. यह वाक्य किस चैप्टर से संबंधित है? कुछ निकल जाए, सबके मुंह से निकल जाती है। this sentence, which chapter is this sentence? खोला नहीं है दरवाजा। This sentence is related to order of request. यह वाक्य जहाँ से लगा रहे हैं, ये वाक्य किस चैप्टर से संबंधित है? यह वाक्य ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट से संबंधित है। This chapter is this sentence related? This sentence is related to order of request chapter. ये sentence किस chapter से related है? यह sentence order of request chapter से related है। Which chapter is related to this sentence? Sorry, this sentence is related to answer. This sentence or which chapter is related to this sentence? Which chapter is related? Sir. Which chapter is related to this sentence? Which chapter related? Which chapter is this sentence related? This sentence is related to order. यह वाक्य किस चैप्टर से संबंधित है? यह वाक्य ऑर्डर और चैप्टर से संबंधित है। Which chapter is this sentence related? This sentence is related to order request chapter. यह वाक्य किस चैप्टर से related है? यह वाक्य ऑर्डर और रिक्वेस्ट चैप्टर से related है। Which
which chapter this sentence is related? Sorry. Which chapter is this sentence related to? Is Only others. sentence related. Which chapter is this sentence related? This sentence is related to order request. यहाँ वाक्य कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? कौन नहीं है? क्योंकि उसमें किस लगा है? किस आएगा? ये वाक्य किस चैप्टर से रिलेटेड है? यह वाक्य order और request chapter से related है. Who's this? मामा बताएंगे. Which chapter is this sentence related? This sentence related to. Sorry. This sentence related. Sorry. This sentence is related to order and request chapter. यह वाक्य किस चैप्टर पर आधारित है? संबंधित है. यह वाक्य ऑर्डर रिक्वेस्ट से संबंधित है. क्वेश्चन तो रिपीट होगा. Which chapter is this? Is this related chapter? Is this related to? Sorry. Which chapter is this? ओके. Which chapter? बच्चों, एकदम से किसी ने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल दिया था. Yes, sir. क्यों बोल दिया था पता? आईएनजी लगा हुआ देख के प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल दिया. तो यहाँ एक नई चीज सीखते हैं हम. कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें क्या? सर वो उसमें करता नहीं है. दो बार दोनों बार. गुड. और कुछ महत्वपूर्ण चीज? अभी हमने हिंदी इसलिए नहीं लिखा कि हिंदी का कोई मतलब नहीं रहता, उस वो अलग चीज हो जाती. चलो थोड़ा थोड़ा तुम लोग को नजदीक लेके चलते हैं. आज के पहले अपन ने कोई ऐसा नियम देखा है जिसमें दो क्रियाओं का क्या? अच्छे राउंड भी खेले थे अपन ने. लेकिन इसमें टू था. हाँ, गुड, वेरी नाइस. बहुत सही, नजदीक पहुंच गए तुम इस बात पे. मतलब वहां दो क्रियाओं को अपन ने कैसे जोड़ा था? टू से. ये नियम है एक. यहाँ दूसरी अच्छी चीज देखने मिल रही है. इतनी सी बारीक चीज है लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम लोग के उसमें बड़ी काम में आती है. दो क्रियाएं यहाँ पे भी जुड़ रही लेकिन बिना टू के भी जुड़ रही. तो अगर आपको बिना टू के दो क्रियाएं जोड़ना है तो अब ध्यान से देखो, यहाँ दूसरी क्रिया क्या बन जा रही है? Yes. रिक्शे वाला भी बना लेता है ना ऐसा नाम. वो जो पिक्चर देखने जा रहा है बोलता है गुरु स्टार्टिंग तो बहुत ही बेहतरीन है लेकिन एंडिंग में सब कचरा कर दो नाम उसके मुंह से. तो वास्तव में ग्रामर है मजेदार. अगर तुम समझते जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा. तो दो क्रियाओं को ऐसे भी जोड़ सकते. टू की जरूरत नहीं है. तो पहली बार वो दोनों, दूसरी बार के बीच में टू नहीं, दूसरी बार में आईएनजी लग गया, ऐसे भी जुड़ जाती है.
अब अपन ऐसी चीजें आगे और देखेंगे बार बार, तो फिर वो चीज आत्मसात हो जाएगी। जब हम बोले कि हम बहुत खुश हैं, हैप्पी कैसे होगा? हाँ? समझ में आया इसको कंफ्यूजन कहाँ है? वो वर्ब है ही नहीं। ये जो हैप्पी है वर्ब है ही नहीं। क्या है? व्हाट इज हैप्पी? जैसे ही इज हैप्पी, हाँ, हैप्पी उसकी क्या बता रहा है? ही इज हैप्पी। वो कैसा है? विशेषता नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक विशेषता है उसकी। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डफर, दोनों विशेषता ही है। ठीक है ना? जैसे ही इज फैट, ही इज स्लिम, शी इज स्लिम, शी इज फैट। एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो कैसी है। एक सेंटेंस में बोला जा रहा है शी इज स्लिम, हिंदी शी इज फैट, है ना? अब ना फैट में आईएनजी लगेगा ना स्लिम में लगेगा एडजेक्टिव में। हाँ, वो बात अलग है। जैसे लव, लव क्रिया भी है और नाउन भी है, संज्ञा भी है, तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन गो जो है, अपन ने अभी तक देखा कि गो नाउन नहीं है, वर्ब ही है ना? तो जैसे ओपन, ओपन वर्ब भी है, नाउन भी है। कभी ऐसा सेंटेंस सुना? दिस शॉप इज ओपन 7 days, सुना कभी या देखा? तो यहाँ ओपन क्या होगा? हाँ, एडजेक्टिव है कि ये दुकान 7 दिन कैसी रहती है? कैसी रहती है या नहीं? ठीक है। कौन सा? एग्री। एग्री लगा सकते हैं। इसका सवाल अच्छा है बच्चे। हाथ उठाओ, किस किस के घर में डिक्शनरी है, कोई सी भी हो। थोड़ा थोड़ा देखा करो। कभी भी कोई तुम लोग अभी सरल तरीका अपनाते हो ना मोबाइल का, कभी इस वाली डिक्शनरी में देखा करो। और आज के बाद ऐसे देखना शुरू करो, तुम पाओगे कि किसी किसी वर्ब के अंत में कोष्टक में लिखा रहता है दिस वर्ब कैन नॉट बी, बोलना दिस वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, लिखा मिलेगा। क्या मतलब है? इस क्रिया का कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आज एक गलती भी सुधार देते हैं। कल कोई वहां से बोल रहा था कि सर वो लोग तो ऐसा बोलते हैं आई एम कम बैक, ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। तो अपन लोग एक गलत सेंटेंस बोलते आ रहे हैं, उसको भी आज सुधार लो। कभी ये गलत है लेकिन सुना होगा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे।
अब ये सेंटेंस इसमें लुक में आईएनजी नहीं लगता है, इसलिए लिखा रहता है वर्ब में। तुम कहीं पढ़ना, हमारे पास है कहीं ना कहीं, हम भेज देंगे ग्रुप में जब याद रहेगा। ये हमेशा ऐसे ही होता है, ये लुक ब्यूटीफुल। और हिंदी क्या होता मालूम, तुम अच्छे लग रहे हो या तुम अच्छी लग रही हो रहा होता है। ये लुक ब्यूटीफुल टुडे, मीनिंग उसका कंटिन्यूस में निकलेगा लेकिन आईएनजी नहीं लगता। जो किसी को कमेंट, ज्यादातर कमेंट में बोलते हैं गुड लुकिंग, नहीं हाँ, टीचर्स ये बोलते वो हैं। गुड लुकिंग नाउन हो गया, गुड और लुकिंग मिलके वो नाउन हो गया। शी इज गुड लुकिंग, ही इज गुड लुकिंग, यू आर राइट, अच्छा सवाल किया, वो नाउन बन गया। ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी को बोलोगे, कोई सॉरी तो नहीं बोलेगा क्योंकि वो गलती चल रही है, और तुम थैंक यू बोल दोगे, किसी ने तुम्हारी तारीफ की, यू लुकिंग गुड टुडे, तो सर कुछ लोग चिढ़ जाते हैं अगर उनको टोक दो गलत स्पेलिंग लिखी है तो। अ, ये बिल्कुल सही है, तुमने बिल्कुल सही बोला। ऐसे यहाँ पे भी बहुत बार होता है। अ, अब हमारी क्या स्थिति है कि हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारी गलतियों को सुधारें। अभी हमने हाल ही में एक जगह ये भी पढ़ा बच्चों कि ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालना अगर किसी का स्वभाव है तो उसको डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने एक बीमारी नाम दे दी है। हमें इसे नहीं करना चाहिए। जैसे अब कोई ग्वारी घाट बोल रहा है तो हम उसको थोड़ी समझाने लग जाएंगे। ऑटो वाले ने बोला ग्वारी घाट चलना, ग्वारी घाट, तो हम जाके ऑटो वाले को ज्ञान थोड़ी देने लगेंगे कि ग्वारी घाट नहीं होता बेटा, गौरी घाट, उसको थोड़ी बोलेंगे हम बोलेंगे हाँ चलना बेटा, कितने कितने पैसे, बस खत्म बात। कोई तुमसे पूछेगा, कोई बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा ये रास्ता कहाँ जाती है, तो बता दो ये कचनार सिटी जाती है। ऐसा थोड़ी बोलोगे तुम उनसे, बाबूजी ये रास्ता कहीं नहीं जाती है, यहीं रहती है। हाँ चलो ठीक है। ठीक है। अभी एक हाल ही में एक सीरियल में मजेदार बात सुनी। एक बोलता है जाओ तुम चाय चढ़ा दो, तो वो लड़की बोलती चाय थोड़ी चढ़ाई जाती है, दारू चढ़ाई जाती है। अब बात तो सही है। तो ये हमारे जो गड़बड़ चीज है कभी कभी उसको मजाक बन जाता है और वो जोक कहलाता है। तो जोक के सेंस में ठीक है, लेकिन तुम अगर हमेशा किसी को टोको, मान लो तुम्हारी अच्छी फ्रेंडशिप है और तुम्हारे बीच अच्छी केमिस्ट्री है, तुम इसको बोल दो उसको बुरा नहीं लगेगा, तुमने उसको बोल दिया बुरा नहीं लगेगा। लेकिन किसी भी नए व्यक्ति को बोलोगी तो लगेगा ही उसको, तो काय को बोलना है। भाई हम तुम्हारी गलती इसलिए सुधारते हैं क्योंकि तुम हमें फीस देते हो, और तुम फीस इसलिए देते हो कि हम तुम्हारी इंग्लिश को सुधारें। तो तुम फ्री में अगर सुधारोगे तो आदमी को बुरा लगेगा। जाके बोलेंगे पैसे तो हाँ। भाई तुम यहाँ आ रहे हो, इतनी दूर से आते हो इसलिए कि तुम्हारी गलतियां हम सुधारें, तो हम सुधार रहे हैं। हमेशा नहीं, कई बार हम सुनते हैं और मुस्कुरा देते हैं, जो आमतौर पर बात चलती है कहीं पे भी, तो हम हर जगह अपनी मास्टरी थोड़ी दिखाते हैं। और कई बार तो हम बाहर निकल के भी, जैसे तुम लोग की चर्चा हो रही है, किसी ने कुछ बोला पूछा, वहां पे भी नहीं, भाई क्लास के अंदर तक ठीक है, क्लास के बाहर तुमने हमसे 2-4 सेंटेंस इंग्लिश में बोले तो हम उस समय गलती नहीं पकड़े। ओके।
तो ये एक और तरीका हमने सीखा कि दो क्रियाओं को बिना टू के दूसरे में आईएनजी लगा के। एक ऐसा सेंटेंस और दिया था जिसमें हमने क्रिएटिविटी करवाई थी तुम लोग। कीप ट्राइंग दिए थे। याद आया? उसमें फिर वर्ब बदलवाई थी। हाँ, अलग अलग वर्ब रखी थी। वो भी इसी का एक उदाहरण। अब यहाँ दो मीनिंग होने वाले हैं, तुम समझ गए होगे। हमने यहाँ बटे का निशान लगा दिया, ऑब्लिक। स्लैश भी बोलते हो तुम लोग, कंप्यूटर में स्लैश बोलते हैं या मोबाइल स्लैश। तो एक तो कैन यू गेस? वैसे तो आसान नहीं है। तुम हॉलीवुड मूवीज देखते हो, ये सेंटेंस तुम्हें उसमें कई बार सुनने मिलेगा। हाँ, याद आएंगे। सैनिक चले जा रहे हैं और हीरो बोलता है, कम ऑन गेट गोइंग, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, गेट गोइंग, बढ़ते चलो। और किसी का उत्साहवर्धन करने के लिए भी आप बोल सकते हैं, गेट गोइंग। आमतौर पर सेना वगैरह में बोला जाता है। चलो पहले तो एक इसको सिंपल राउंड चला लेते हैं। गेट गोइंग, बढ़ते चलो। 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 क्रिएटिविटी करना है, नहीं कर लो जिससे। जैसे पहली क्रिएटिविटी हम कर देते, कम ऑन एवरीबॉडी, डोंट स्टॉप, गेट गोइंग। हम हिंदी नहीं कर रहे क्योंकि वो मजा नहीं आया। नहीं, उसमें अभी नहीं बदलना है। हमने नहीं बदला, दो सेंटेंस आगे और लगा दिए, कम ऑन, डोंट स्टॉप, गेट गोइंग। कम ऑन, रुको मत, बढ़ते चलो। तुम भी अपना वही वाला बोल दो। बॉयज वी शुड गेट गोइंग। बॉयज हमें बढ़ते चलना चाहिए। हाँ, इसका एक हिंदी ये भी हो सकता है, बॉयज हमें बढ़ते रहना होगा, ऐसा भाव आ जाएगा। फिर गेट गोइंग, चालू बढ़ते चलो। गेट गोइंग, डोंट बी सिली, गेट गोइंग, नादानी मत करो, बढ़ते चलो। बच्चों केवल हम भाव को बदलने के लिए हम एक शब्द और लगा रहे हैं, वरना इसी को गुस्से में अगर कोई बोलेगा तो अर्थ बदल जाए। इसका दूसरा, हम इसी को गुस्से में बोलते हैं, सर ये गुस्से में नहीं, गुस्से में नहीं निकलते। निकिता करके दिखाएंगे। चलो कैसे? सर कह रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैटर
गेट गोइंग नाउ। हम्म तो मेरे साथ में बात कर लो, चलो ना। कितना अच्छा लगा। Don't let me down. Get going now. मेरी बात बता दो, नहीं समझना। समझ गई। Don't let me down. Get going now. हाँ ये तुमने यू ये काम कटवा दोगे। तुमने एक्सप्रेशन नहीं ला पाया, उसने अच्छे एक्सप्रेशन से। You don't let me down and get going now. तुम मेरी नाक कटवा दोगे, चल रहा। तू मेरी नाक कटवा देगा। भाई क्रोध में कोई विनम्रता पूर्वक थोड़ी बोलता है। तो कुछ जाएगा। तू मेरी नाक कटवा देगा, चल घर यहाँ से। Today's idiom is a 9 days wonder. चांदी फिर अंधेरा। वाह, गुड। ये देखो बहुत अच्छी बात हो रही है बच्चों कि अब तुम लोग कुछ मामले में तो अनुवाद से बाहर आ गए। अब इंग्लिश में 9 है तो वहां जरूरी थोड़ी कि 9 आए। और अपन जब बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी, तो ऐसा चार वास्तव में ऐसा तो होता नहीं है, वो तो एक भाव है। भाई चांदनी तो 15 दिन रहती है, 15 दिन अंधेरा रहता है, 15-15 दिन होते ना, पता है ना अपने कैलेंडर में। कैलेंडर में लिखा रहता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण यानी काला, यानी जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उसकी रोशनी नहीं रहती रात में, तो वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। और फिर चंद्रमा दिखने लगता है तो शुक्ल पक्ष, उजाला। तो वो तो 15 दिन का होता है, लेकिन अब मुहावरा बन गया है कि 4 दिन बड़ा उत्साह रहता है, उसके बाद वो भाव ये है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब शुरू शुरू में बहुत उत्साह रहता है, ठीक है ना। जैसे शादी में ले लें, शादी में शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद अरे यार भला है। चलिए सीखो। A 9 days wonder. 4 दिन की चांदी फिर अंधेरा। A 9 days wonder. 4 दिन की चांदी फिर अंधेरा। A 9 days wonder. 4 दिन की चांदी फिर अंधेरा। A 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा। A 9 days wonder. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा। पूरा लिख दे, उसको नहीं पता है ना, कुछ गड़बड़ किया उसने तो मैं हंसी आई होगी, उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। तुम बोल दो फिर वो सुन लेगी। A 9 days wonder. 4 दिन की चांदी फिर अंधेरा। A 9 days wonder. 4 दिन की चांदी फिर अंधेरा।
एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, अगर मिला होगा इंटरेक्टिव तो समझ जाओगे, नहीं तो फिर हम आज दे देंगे, क्योंकि कल भी नहीं दिया था, आज डबल इंटरेक्टिव दे देंगे। यू नेक्स्ट गेट गोइंग नाउ। नहीं समझे ना? हैव यू रिटन द फर्स्ट वन? Yes, sir. I have written the first one. क्या आपने पहला वाला लिख लिया? Yes, sir. शुड आई रीड? Yes, sir. You should read. क्या मैं बेटा दूं? Which chapter is this sentence related? This sentence is related to the Where is B? हाँ, पूरा रिपीट करा दे रहे ना, इसलिए तुमसे पूछ लेते हैं। Where is B? Here the be present in the form of are. अच्छा, नहीं, तुमने कठिन कर दिया। बोलना B is in the form of are. B R के रूप में है। फॉर्म यानी रूप। फर्स्ट फॉर्म पहला रूप, सेकंड फॉर्म दूसरा रूप, थर्ड फॉर्म तीसरा रूप। कभी ऐसे सुना है? पहले सुना होगा। सचिन फॉर्म में है और आज तो फॉर्म में है मतलब एक्चुअली वो सही रूप में है। जैसे महाभारत या रामायण देखा होगा अपन ने, लॉकडाउन के दौरान आती थी। भगवान जब अपने फॉर्म में आते हैं सभा में पूरे, तब दिखाते हैं ना ऐसे। अब वो तो पिक्चराइजेशन करते हैं कि बढ़ते चले जाते हैं, फिर उनके बहुत सारे सिर दिखाई देते हैं, ढेरों हाथ दिखाई देते हैं, तो भगवान अपने फॉर्म में आ जाते हैं, वही। और एक और मजेदार बात बताते हैं इससे जुड़ी हुई। एक शब्द है ये शब्द बिल्कुल केजी से बच्चे को जुबान पे आ जाता है। यूनिफॉर्म, जैसे आज ये यूनिफॉर्म नहीं पहन है आज हो। तो कभी इस शब्द को समझने की कोशिश की, यूनिफॉर्म प्रॉपर है, जैसे होना फॉर्मल। ये ऐसा समझते आ रहा है। यूनाइटेड ग्रुप मतलब सबका यूनिट। यूनि यानी होता है एक, फॉर्म यानी रूप, एक रूप। यानी आप स्कूल में देखेंगे तो उद्देश्य ये है कि वहां कोई हिंदू नहीं नजर आ रहा है, मुस्लिम नहीं, क्योंकि कपड़ों से हम समझते हैं कि ये सरदार है या ये हिंदू है या ये मुस्लिम है, कपड़ों से समझ में आता है ना। तो उन्होंने बोला नहीं यार, ऐसे में अमीर, क्योंकि जो अमीर हो, मान लो अगर नॉर्मल ड्रेस रखते हैं तो अमीर लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, अमीरों के बच्चे, और गरीबों के बच्चे अब उनको दिक्कत होगी। तो उन्होंने बोला नहीं यार, यूनिफॉर्म, एक, कम से कम इस उम्र में मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं आना चाहिए, सब एक से, एक रूप, उसमें कोई
हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई इस जात का नहीं, कोई उस जात का। यूनिफॉर्म एक ग्रुप। क्या कर रहे हो? कर दिया तो हमने भी। positive uniform noun है अब समझ में आया। noun है नाम लिख लेना नाम। चलो आगे कुछ लिखते हैं। Where is B in this sentence? is in the form of R. इसमें B कहाँ है? इसमें भी R के रूप में। Where is B is in this sentence? where is B in this sentence? B is in the form of R. यहाँ पर B कहाँ किस रूप में? यहाँ पे B R के रूप में है। Where is B in this sentence? R is B is the form of R in this sentence. Sorry. और बताइए। B is the form. Sorry. B is the. तुम भी। अब देखिए ये केवल पेन से खेल रही है कि ये भी जाग रही है। R is in the form of B. चलो तो यहाँ आ जाओ फिर। चेंज करें नहीं करें रहने दो बैठ। तुम पूछ लो। Where is B in this sentence? B is R form in this sentence. चलो आ ही जाए तुम, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद उससे क्वेश्चन होगा तुम्हारा, फिर वो बोलो। What comment? Answer. R is in the form of B. Where is B in this sentence? R is the. B is the. चलो तुम उससे पूछो। Where is the B in this sentence? R is the form of B. R is the in form of B. So इधर पूछो तो। where is नहीं नहीं तुमको पूछो। where is the form of B? Where is the B in this sentence? Where is B in this sentence? R is B in R is B in this sentence. Where is the R this sentence? चलने दो तुम तो आगे से। B is in the form of what? R यहाँ किस रूप में है? Sorry. ठीक है तो इसलिए तो नहीं करवा रहे, सवाल ही गलत है तो उससे पूछो। Where is the B in the sentence? B is in the form of R. R यहाँ पर किस रूप में है? R यहाँ पर B D यहाँ पर किस रूप में है? B यहाँ पर R के रूप में है। Where is B in this sentence? B is R form. R is the B form. चलो काय को हम रोज ही पूछेंगे तो जवाब देते जाना तो। चलो अगला सेंटेंस पूछ लेते हैं। व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस सेंटेंस? The category of the sentence is inverted.
Inverted. Inverted is the category of the sentence. अब आगे से जब हम पूछें तो आंसर ये देना, अभी तो हमारे साथ बोल दो। It is is an inverted inverted sentence. sentence. अब एक बार हम पूछ लें, what is the category of this sentence? It is an inverted sentence. इस वाक्य की कैटेगरी कौन सी है? अच्छा, हिंदी में भी तुम लोग के मन में वही चल रहा है, तुम बताओ। यह वाक्य इन्वर्टेड सेंटेंस है। यह इन्वर्टेड, इसलिए तुम लोग बार बार बोल रहे हैं। भाई प्रश्न हमारा है वो अलग है, उत्तर तुम्हारा अलग है। जैसे हम तुमसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो तुम ऐसा थोड़ी बोलोगी व्हाट इज योर नेम माय नेम, व्हाट इज योर नेम लक्ष्मण माय नेम इज, ऐसा थोड़ी बोलोगी। भाई प्रश्न अलग है, तुम्हें तो उत्तर देना है। अब हमारे प्रश्न में तो व्हाट आ रहा है, इज आ रहा है, योर नेम। चलो हम करके देखते हैं, व्हाट इज योर नेम। अब तुमने ना योर लगाया ना व्हाट लगाया, ये सब तुम क्यों लगाओगी भाई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्य है। हाँ, तुम तो अपना आंसर दोगे ना, जो तुम्हारा आंसर। What is the category of this sentence? यह इस वाक्य का प्रकार क्या है? Inverted sentence. What is are in this sentence? What is you? What is nuts? Very good. अब देखो कितने कॉन्फिडेंस से निकलता है, अगर सही होता है ना, कितने जोर से निकलता है। तो ये तीसरा शब्द या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। तो ये यहाँ पे एक्चुअली एडजेक्टिव है, ये यहाँ विशेषता बतलाता है। अब बिल्कुल हिंदी नहीं समझ में आ रहा ना? हाँ यार, तुम हॉलीवुड मूवी देखते हुए इसके साथ साथ समझ में आए। हम इसका हिंदी वैसा दे रहे हैं जिससे तुम्हें मजा आएगा, जबलपुर या हिंदी दे रहे हैं, ठीक है? हमने बिल्कुल वैसी भाषा में लिखा, अगला होगा। हमने इसके पहले जो सेंटेंस बोला था अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमने बोला था यू नट्स गेट गुड। अब बिल्कुल जबलपुरिया भाषा में हम इसका हिंदी बोल रहे हैं, भग साले पागला। हमने वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला था बेटा, हमने बोला यू नट्स साले पागला, ऐसा वो वाला। अब कोई साले के लिए शब्द तो हम लगाएंगे नहीं वहां पे, वो हिंदी का शब्द है। अब सोच के देखो, इसी पर थोड़ा सा विचार करते हैं। साला शब्द वास्तव में एक रिश्ता है, अब वो गाली का रूप कैसे ले लिया? तो अब कोई साला बोलते छोटा बच्चे घर में, तुम मम्मी डांटे बेटा खराब शब्द है, ऐसा नहीं बोलते। अब किसी से हम बच्चे करें जी मेरे साला सा, तो वहां खराब नहीं लगेगा। ये मेरा साला है, ये मेरे बड़े साले हैं, ये मेरा छोटा साला है, ये साली है। अब वो तो कैसे कुछ चीजें कैसे बन जाती हैं, ये विचार करो इस क्लास में। चलो क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर लेते हैं।
अभिषेक, अनिमेश, आर यू नट्स? No, I'm not nuts. अनिमेश पगला हो क्या? What is your name? My name is Swati. Swati, are you nuts? No, I am not. स्वाति अगर पगली हो एक और शब्द बताइए जो और होता पगलिया। मैं पगली नहीं हूँ। श्रेया, are you nuts? No, I am not nuts. श्रेया तो पगली हो। मैं नहीं हूँ। Are you nuts? No, I am not nuts. आप भागो। Are you nuts? Are you nuts? No, I am not nuts. पगलिया। Are you nuts? No, I am Yes. not nuts. तुम पगली हो? नहीं, मैं पगली नहीं। Are you nuts? Yes, I'm nuts. Because if you want to get success, you should be nuts. क्या आप पगले हो? हाँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, क्योंकि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको पागल होना पड़ता है। अब यहाँ देखते हैं एस लगने से इतना अर्थ बदल गया। What is nut? Nut is it? No. बच्चों तुम लोग अच्छे से जानते हो लेकिन कभी व्याकरण के रूप में नहीं देखा, तो आज हम तुम्हारे मुंह से अलग अलग शब्द निकलवाएंगे जिसको जितने मानों में बोल देगा। किसी भी कठोर चीज को अंग्रेज उसमें नट लगाते हैं। Yes, sir. तो एक पहले बताओ। एक हो गया कोकोनट, पीनट, दो हो गए। अच्छा एक जो बहुत फेमस है वो किसी को याद नहीं है उसको बोलो हमारे साथ, कैश्यू नट। किसको बोलते हैं? यस, लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि काजू तो नरम होता है। हाँ, उसको छील के बेचा जाता है इसलिए वो जो हिस्सा हमें मिलता है वो नरम होता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ही कड़ा छिलका होता है। और एक और, हाँ, हम एक हिंट देते हैं। यस, चलो आज ये भी पता चल गया वॉलनट, अखरोट। अब उसको तो बिना छिले दोनों तरह से मिलता है बाजार में, आपको पता है। आजकल तो पैकेट में सीधा छिला छिलाया भी आने लगा। तो और अगर टेक्निकल उसमें जाए तो नट, उसमें नट हो जाएगा। कोई भी कठोर वस्तु को बोलते हैं। एक राउंड और खेलते हैं निमेश, तुमसे शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ी सी वैरायटी आ जाए। Who is nuts? Captain is nuts. अब तुम्हें किसी को कोई शंका तो नहीं हुई, शक तो नहीं आया कि सर आप इस लगा रहे और वहां एस भी लगा हुआ? क्योंकि यहाँ पे एस लगने से बहुवचन वाला नहीं है ये, वो शब्द ही ऐसा है। वही तो, नट बोलोगे तो अर्थ ही बदल जाएगा उसका, फिर तो वो हो जाएगा। ये देखो ना, हाँ ऐसा बोल सकते दिस इज कोकोनट। हाँ ये भी बोल सकते हैं दिस कोकोनट इज नट्स। अब हिंदी भी सुन लो, ये नारियल पगला है। अब उदाहरण के लिए बता दिया, लेकिन ऐसा तो वो हो गए। पगला किसको बोलेंगे, अपन व्यक्तिवाचक ही होगा। तो
तो ये अंतर है। तो अब सुनना ध्यान से, हु इज नट्स? Our captain is nuts. हाँ, पगला कौन है? हमारा captain पगला है. हम्म, Who is nuts? My senior under officer is nuts. पगला कौन है? मेरी senior under officer पगली। बताते हो। Who is nuts? My friends are nuts. पगला कौन है? मेरे friends कौन है? पगले। Who is nuts? Who is nuts? राहुल गांधी is nuts. पगला कौन? राहुल गांधी पगला है। बताओ कि देखो। Who is nuts? My younger brother is nuts. पगला कौन है? मैं पता नहीं पगला। Who is nuts? Genie is nuts. Okay? Genie. Genie is nuts. पगला कौन है? Genie पगला है। Who is nuts? Nobody is nuts in this class. कौन पगला है? इस क्लास में कोई पगला नहीं है। All guys nuts. ऑल गाइस के साथ क्या आएगा? All guys are nuts. Why? Which chapter is this sentence related? This sentence is related to simple present. You are also correct. You are also correct. But you are some little wrong. You are also little wrong. अब बताओ, देखो तुम्हारे सामने दो चीजें आ गई। ये भी सही बोल रही है, वो भी सही बोल रही है, लेकिन दोनों थोड़ा थोड़ा गलत। कैसे जवाब? बेटे तुम्हें तो नहीं समझ में आएगा, तुम रेगुलर नहीं होगा। बीच बीच में कुछ नई चीजें हम इनको बता देते हैं। Sir, this sentence is having two. Yes. So there you are. हिंदी बोल दो इसका। इस सेंटेंस के दो पहलू हैं। हाँ, दो हिस्से। दो हिस्से हैं। First sentence is related to order of request and second sentence is related to simple present tense. अब अलग अलग पूछ लेते हैं। What is make? Make is the order and order. Make is related to order. Make is the subject से. Make is the verb. और थोड़ा सा। Make is the first form of the verb. Good. तुमने बोला ना? What is make? What is why? दो चीजों को जोड़ रहा है ना, तो एक बार बोलना। तुम लोग ये सभी बच्चे गलत बोलते हैं, बाहर लिखा है, पढ़ लेना बोर्ड में। कंजंक्शन। और इसको ऐसे समझ लो ना बेटा। हाँ, जबलपुर एक जंक्शन है, सिहोरा नहीं है। कटनी जबलपुर से बड़ा जंक्शन, तो जंक्शन क्यों बोलते हैं, कभी विचार किए? सिहोरा, मान लो सिहोरा जानते हो, एक गांव है। सिहोरा जंक्शन नहीं है, पता, क्योंकि सिहोरा में या तो इधर से ट्रेन आती है या इधर, केवल दो दिशा है, तो ये जंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप कटनी जाओ, जबलपुर भी है,
लेकिन अगर आप कटनी जाओगे तो कटनी में आपको ऐसा कम से कम 4 दिशा से ट्रेन आती जाती है, इसलिए वो जंक्शन। जबलपुर जंक्शन रहा कि नहीं हमें पता नहीं है, क्योंकि पहले जब छोटी लाइन थी तो एक इस दिशा में अलग ट्रेन जाती थी, बिल्कुल ही अलग दिशा में। अब अगर वो ब्रॉड गेज बन गई होगी, नैरो गेज से ब्रॉड गेज बन गई होगी तो जंक्शन। लेकिन तुम जब भी ट्रेन में जाओ तो देखना कि अधिकतर जो स्टेशन छोटे छोटे स्टेशन होते हैं वो जंक्शन नहीं होते। बस एक इस तरफ से ट्रेन आएगी और इस तरफ जाएगी, 2 पटरी जाएंगी। लेकिन कटनी में कभी उतर के देखना तब समझ में आएगा, थोड़ा घूमना पड़ेगा पहले, तो तुम देखोगे कि ऐसे मुड़ के एक इस दिशा में ट्रेन चली जाती है, वो देखने से पता चलेगा, या फिर गूगल में ऐसे करके देख। कटनी जंक्शन बोलना तो गूगल मैप दे देगा, गूगल थोड़ा सा बड़ा करके। पहले तो गोरखपुर में भी एक स्टेशन था, वो एक वो कर दिया, वो आना जाना हो गया, ऐसा नहीं करना इसलिए बड़े जंक्शन वो रही नहीं, रास्ता नहीं। और हमारा एमपी का सबसे बड़ा जंक्शन जो है, जहाँ से आपको ट्रेन बदलना पड़ती है अक्सर, इटारसी सबसे बड़ा जंक्शन। वहाँ इंजन भी बदलता है क्योंकि दिशा बदल जाती है। आप कभी ध्यान से देखना, अगर इटारसी जा रहे हो तो पता चले इटारसी तक पहुंचते समय ट्रेन ऐसे ही जा रही थी, तो फिर जब इटारसी से आगे बढ़ेगी तो आपको लगेगा उल्टी जा रही है, लेकिन उल्टी नहीं जा रही, वो दिशा बदल के दूसरी तरफ। इलाहाबाद भी बड़ा जंक्शन है, इलाहाबाद प्रयागराज। तो ये कंजंक्शन है, 2 चीजों को जोड़ता है। व्हाट इज द, बोलो, द इज एन आर्टिकल। व्हाट इज सन, नाउन तो है और यहाँ पे सब्जेक्ट। व्हाट इज, हाँ ये पूरा है, एक्चुअली ये पूरा सब्जेक्ट याद है, लेकिन ये इसलिए पूछ लेते हैं कि एक वो भी निकल जाता है, एक इंग्लिश और मुंह से निकलती है, ज्यादा निकल जाता। व्हाट इज, हाँ इसको यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। शाइन इज अ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा इसमें। हाँ इसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हे शब्द सुना है कभी नहीं बच्चों? एक वो अलग बात है, हे आए वो अलग है। What is hey? What is the meaning of hey? The meaning of the distribution. अब ये हिंदी शब्द भी पता नहीं बच्चों को, तुमने कभी सुना है? किताबी शब्द है ये, शायद मतलब तुम बुक में पढ़ने मिलेगा बेटा। गेहूं की फसल कट गई, ठीक। अब खेत में जो वो पोले पोले से जो, कटने के बाद जो बच्चे, हाँ पोला समझते हो ना जी? Yes,
जिसमें से हवा चली जाए। straw, हाँ, स्ट्रॉ जैसे, उसको कहते हैं सरकंडा। एक जबलपुर के शब्द लिख दे रहे हैं, हिंदी है ये। दो उदाहरण दे रहे हैं, इसको तुमने जरूर देखा होगा, और तीसरा कुछ तुम्हें अगर मालूम हो तो तुम बताना। दुर्गा जी की मूर्ति बनती, गणेश जी की कभी, तो मिट्टी के पहले पहले वो क्या लगा के बांधते हैं रस्सी से। और अगर किसी के घर में घर वगैरह बन रहा है और शीट जब आती है, लेटरिन की जो कमोड आता है, वो काय में पैक हो गया, या कोई भी चीज पैकिंग ध्यान दिया है, जिससे वो टूटे नहीं, फिर वो फैल जाता है तो गाय वाय खा लेती है। हाँ हाँ, प्यान बोलते, प्यारा बोलते हैं, पैरा बोलते हैं, वही वही चीज जो कि तुमने बोला। अब हर जगह अलग अलग बोलते हैं वही। और अब पान का वैसा वाला प्रचलन पता नहीं तुम लोगों को, हमें याद है हम बचपन में फुहारे जाते थे, पिताजी बोलते थे ये लोग 2 रुपए पान ले आओ, लगा लगाया पान नहीं, कच्चे पान। तो वहां पे बजरंगबली के मंदिर के किनारे किनारे बैठे रहते हैं, तो उन्होंने जैसे 2 रुपए के 10 पान ऐसे गिने, 1 2 और फिर उसको एक बांध के पकड़ाते हैं, तो वो उसी से मढ़ई, हाँ बिल्कुल। घास फूस समझ लो, घास फूस जो ऊपर डाल भी देते तो उससे धूप, और अगर बहुत ठंड पड़ रही हो और आप उसके अंदर घुस के सो जाओ, इतनी सी ठंड नहीं लगती। तो अपन तो नहीं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो उस पे बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। हाइड एंड सीक खेला है तुमने, बिल्कुल। अब अपन इसका अर्थ निकालते हैं। वैसे तो बिल्कुल नहीं लिखिएगा, है ना? किसी को थोड़ी सी गैसिंग आ रही है? नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम एक शब्द लिखेंगे तो हो सकता है। ये तो पूरा कर रहे थे नहीं? वास्तव में मुहावरे कोई ऐसी रटने वाली चीज थोड़ी है। मम्मी पापा दादा दादी लोगों के मुंह से खुश, अड़ोस पड़ोस में कोई बड़े उम्र का है तो बात करते समय कोई, और सीरियल में, फिल्मों में खूब चलते हैं। इसका मीनिंग समझते हो बेटा? बैठे हो?
लगे हाथ कोई काम कर लेना। तो अब चलेगा, चलो बहती गंगा, चलो सभी लोग कर रहे हैं, तो चलो पानी बह रहा है, चलो उसमें नहा ही ले। ठीक है, अब ये इंग्लिश में कैसे है वो भी देख लो। मेक है, यहाँ पे मेक है का मतलब है उसको काट लेना। कब काट लेना? वाई यानी जब। यहाँ पे वाई का मतलब हो रहा है जब। जनरली क्या होता है इसका मतलब वाई? बेटा इसका वास्तव में कोई एक अर्थ नहीं होता। अभी अपन धीरे धीरे देखते जाएंगे। अभी हम लिखने जा रहे हैं, वो तो लिखेंगे ही नहीं, लेकिन अभी हमने जो बताया वो क्या बताया? जब। हाँ, अभी यहाँ से करती है। ठीक, तो तुम में से कोई गांव में रहा है, खेत वेत के आसपास? ये वो हालांकि तुम लोग पता नहीं उस हिसाब से देखा है कि नहीं, पापा मुझसे बात करोगे तो बता देंगे। तो फसल तो कट गई, लेकिन वो जो रह जाता है वो तब काटने में सुविधा होती है जब एकदम धूप निकली, तो वो आसानी से कट जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा नमी हुई, जैसा भी कोहरा वहरा रहता है, तो वो नहीं करता है। बहुत मुश्किल पड़ती है। इसलिए हिंदी ये होगा जब सूरज निकल रहा है, चमक रहा है। हाँ, तब आप उसको कर दो। काट लो। सूरज चमक ही रहा है, चल लगे हाथ उसको काट लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। Make a while the sun shines. बहती गंगा में हाथ धोना। Make a while the sun shines. बहती गंगा में हाथ धोना। Make a while the sun shines. लगे हाथ कोई काम कर लेगा। Make a while the sun shines. बहती गंगा में हाथ धोना। Make a while the sun shines. बहती गंगा में हाथ धोना। Make a while the sun shines. बहती गंगा में हाथ धोना। इसको किसी चैप्टर में रख के बता सकते हो बच्चे पूरे से? I made hay while the sun sets. मैंने बहती गंगा में हाथ धोए। मैंने कभी हाथ अपना काम कर दिया। You should make it while the sun shines. बहती गंगा में हाथ धो देना चाहिए। हाँ, I will make hay while the sun shines. मुझे बहती गंगा में हाथ मैं बहती गंगा में हाथ धोऊंगी। मैं लगी हाथ अपना काम करूंगी। I sooner and later make hay while the sun shines. मैं एक ना एक दिन बहती गंगा में हाथ धोऊंगी। Sooner और later को पहले रखो। I sooner or later I make इसके आगे sooner and later I make hay while the sun shines. मैं एक ना एक दिन बहती गंगा में हाथ धोऊंगी। एनीवेज तुमसे क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले चैप्टर में तुम आगे। कैन यू मेक है व्हाइल द सन शाइन्स? Yes, I can make hay while the sun shines. क्या आप बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं? मैं बहती गंगा में हाथ धो सकता हूँ। यहाँ प्रपोजिशन है कंजंक्शन। यहाँ बेटा वो करने का, लेकिन प्रपोजिशन की तरह काम कर, इस बहाने दोनों चीजें हो। हम वो लिखना भूल गए, तुम लिख सकते हो साइड में, दोनों लिख लेंगे। इसको कुल में पूछ लो। Could you make hay while the sun shines? Yes, I could make hay while the sun shines. क्या तुम बहती गंगा में हाथ धो सकती थी?
हाँ मैं बहती गंगा में हाथ धो सकती थी। Are you making hay by the sunshine? दूसरी पूछ लो। Do you make hay by the sunshine? Yes, I can make hay by the sunshine. चलो उसके बिहाफ में हम आज तुम दोगी बेटा? दे दो। Yes, I do make hay by the sunshine. चलो हम दे तुम नहीं हम दे देंगे। यस आई मेक हे बाय द सनशाइन। क्या आप बहती गंगा में हाथ धोते हैं? हाँ मैं बहती गंगा में हाथ धोता हूँ। अब अगला सवाल मैं उससे कर लेता हूँ, वो जवाब नहीं दे पाएगी तो तुम दे देना या ये तुम या तुम। Did you make hay while the sun shines? Yes, I can make hay by the sunshine. Yes, I made by Yes, I made hay by the sunshine. क्या आपने बहती गंगा में हाथ धोए? हाँ मैंने बहती गंगा में हाथ धोए। Will you make hay by the sunshine? Yes, I will make hay by the sunshine. क्या आप बहती गंगा में हाथ धोएंगी? हाँ मैं बहती गंगा में हाथ धोऊंगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनो। Are you making hay by the sunshine? Yes, I make hay by the sunshine. Are you making the? तुम दे दो आंसर। Yes, I make. कौन देगा? तुम दे दो। Yes, I am making hay by the sunshine. क्या तुम बहती गंगा में हाथ धो रही हो? हाँ बहती गंगा में हाथ धो रही हूँ। इसमें एक शब्द बदल के पास कंटीन्यूअस हो जाएगा, कोई लगाएगा थोड़ा सा। यस इससे पूछ लो शायद ये उत्तर दे। Are you making hay by the sunshine? Yes, I am making hay by the sunshine. क्या तुमने बहती गंगा में हाथ धोया था? हाँ मैंने बहती गंगा में हाथ धोया। ये बात सिंपल है। हिंदी कौन कर रही है? क्या आप बहती गंगा में हाथ धो रही हैं? क्या आप बहती गंगा में हाथ धो रही थी? हाँ मैं बहती गंगा में हाथ धो रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते हो? Yes, sir. इससे पूछिए। Have you made hay by the sunshine? Yes, I made. Sorry. उत्तर कौन दे सकता है? Yes, I have made hay by the sunshine. ये हम रोज पूछते हैं ना, हैव यू रिटन? Yes. वही अभी दिया नहीं है बेटा हमने तुमको। क्या तुमने बहती गंगा में हाथ धो लिया है? हाँ मैंने बहती गंगा में हाथ धो लिया है। बच्चों व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर चमकना? The word for चमकना is shine. What should be the second form of shine? The second form of shine is shine. शाइन सुना है कभी? नहीं होता। What is the spelling of shown? The spelling of shown should be S-H-O-N-E. What should be the third form of shine? The third form of shine should be shown. बच्चों क्या नाम है इसका? प्रणय तो बहुत गलती करता है आ की मात्रा में, लेकिन तुम लोग आ की मात्रा के संतर को अच्छे से समझते हैं, इसलिए हमने अलग से पहले हम एक साथ लिखवा रहे थे, फिर हमने नीचे अलग से लिखी। तो जब तुम लोग वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करो ना जिसकी भी बात, तो ऐसे बोलना योर वर्ब इज चमकना दैट इज शाइन, योर वर्ब इज चमकाना दैट इज शाइन। दो लोगों को अलग अलग देखो ताकि अंतर समझ में आए सेंटेंस बनाने से। What should be the verb for chamkana? The verb for chamkana should be shown. What should be the second form of shine? The second form of shine should be shown.
शाइन का सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए? And what should be the third form of shine? ऐसे ही एक राउंड चला लेते हैं जब तक कि नहीं लिखते। पहले हम ये वाला ले लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा आसान। Did you shine your bike? Yes, I have signed my bike. Did you shine your bike? Yes, I showed my bike. क्या आपने अपनी गाड़ी चमकाई? हाँ, मैंने अपनी गाड़ी चमकाई। Did you shine your bike? Yes, I have shown my bike. Sorry, I have shown my bike. हाँ। क्या आपने अपनी बाइक चमकाई? हाँ, मैंने अपनी गाड़ी चमकाई। Did you shine your bike? Yes, I shown my bike. क्या आपने अपनी गाड़ी चमकाई? हाँ, मैंने अपनी गाड़ी चमकाई। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Did you shine your bike? Yes, I showed my bike. क्या आपने अपनी बाइक चमकाई? हाँ, मैंने अपनी बाइक चमकाई। Did you shine your bike? Yes, I showed my bike. क्या आपने अपनी गाड़ी चमकाई? हाँ, मैंने अपनी गाड़ी चमकाई। Did you shine your necklace? Yes, I showed my necklace. क्या आपने अपना नेकलेस चमकाया? हाँ, मैंने अपना नेकलेस चमकाया। Did you हाँ, हमसे पूछिए। Did you shine your bike? Yes, I showed my vehicle. क्या आपने अपनी गाड़ी चमकाई? हाँ, मैंने अपनी वाहन चमकाया vehicle. Should we conclude? Yes, चमकाना कैसे हो सकता है? You should sign her. Yours क्या हो गया? क्या तुमने उसे चमकाया? वो डराने वाला चमकाना। वो तो सरप्राइज होगा वो चमकाना या शॉक होगा, है ना? सरप्राइज भी वही होता है करीब। स्कूल जाना है बेटा? अरे तो वैसे डर क्यों जाती है?